Good morning, students. Today my topic is DNA. I will be study here DNA, the DNA. The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. We will first here study about DNA. DNA is a main genetic material of all eukaryotic organism, both plant and animal. The discovery of genetic material will be start from 1869. The first genetic material is known as nuclein because it is found in nucleus, so its name will be nuclein. By the Friedrich Meisner, क्योंकि ये प्रेजेंट था न्यूक्लियस में, इसलिए इसका नाम सबसे पहले न्यूक्लिन पड़ा. द नेम इज न्यूक्लिन. आफ्टर द स्टडी it will find that in nuclein acid is present, so its name is nucleic acid. स्टडी के बाद देखा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिन है उसमें एक एसिड है, इसके बाद इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड इन फर्दर कंसीडर it will two types, RNA and DNA. Today's my topic is not the discovery of DNA. My topic is the structure of DNA. We will study another days about the discovery of DNA. Today I will here considered about the structure of DNA. DNA is the polymer of nucleotide. Structure. DNA is the polymer of nucleotide. What is nucleotides? Nucleotide is made of two materials, nucleoside and phosphoric acid or phosphate group. Polymer of DNA is the polymer of nucleotides. Nucleotide is made of two main components, nucleosides and phosphoric acid oblique phosphate group. Nucleoside is the combination of two materials. Nucleoside is also the combination of two materials. First is nitrogenous base. पहला जो मटेरियल है वो नाइट्रोजनस बेस है. एंड सेकेंड मटेरियल इज deoxyribosugar. It is the pentose sugar. Monosaccharide C5H10O4. Formula of deoxyribosugar is C5H10O4.
this is the pentose sugar type of monosaccharide. When we classify the carbohydrate, it will find in monosaccharide. जब आप कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं तो डीऑक्सीराइबो शुगर पेंटोस शुगर है और वो आपको मिलती कहाँ है? मोनोसैकेराइड में। कहाँ मिलती है? मोनोसैकेराइड। एंड द सेकंड थिंग इज नाइट्रोजनस बेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड डीऑक्सीराइबो शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड phosphoric acid H3PO4. This combination is called the nucleotides. And joining up more than one nucleotide is called DNA. Nitrogenous base. We will study about first nitrogenous base. There are two types of nitrogenous base. दो प्रकार के nitrogenous base हैं। यहाँ पे हम nitrogenous base पे कंसिडर करेंगे जब, तो दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस आपको मिलेंगे। फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस आर टू टाइप्स। फर्स्ट प्यूरीन बेस। फर्स्ट इज प्यूरीन बेस। In purine base, there are two types of nitrogenous base. Purine base में दो nitrogenous base हैं, adenine, guanine, and second is pyrimidine base. pyrimidine base. नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो टाइप के हैं, प्यूरीन बेस एंड पेरिमिडीन बेस। प्यूरीन बेस में दो नाइट्रोजनस बेस को क्लासिफाई किया गया है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पेरिमिडीन बेस में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन पेरिमिडीन बेस, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन। It is present in RNA, not DNA. Uracil present in RNA, not DNA. ये RNA में होता है, DNA में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है। DNA में यही चार टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। यूरेसिल आएगा तो RNA बनेगा, थायमिन हट जाएगा। जब भी यूरेसिल प्रेजेंट होगा तो यूरेसिल हमेशा थायमिन को रिप्लेस करके आता है। क्यों? एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन जुड़ता है, डीएनए में रिप्लेस करेगा थायमिन को, यूरेसिल जुड़ेगा आरएनए में। तो ये नाइट्रोजनस बेस के टाइप्स हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स। द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ single nucleotides? We will first hear about adenine, guanine, thymine and cytosine is the nitrogenous base of DNA. Nitrogenous base of DNA. Nitrogenous base of DNA. There are four types, but in two groups: adenine and thymine, guanine and cytosine. First, in a nitrogenous base. In a nitrogenous base as like as adenine, नाइट्रोजनस बेस से डीऑक्सीराइबो शुगर ऐसे जुड़ते हैं, पेंटोस शुगर होती है डीऑक्सीराइबो शुगर, और फिर डीऑक्सीराइबो शुगर से H3PO4 जुड़ता है, फास्फेट ग्रुप। और ये यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम हियर टू हियर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। और जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट ग्वानिन, डीऑक्सीराइबो शुगर, next deoxyribo sugar, then pentose sugar, but the pentose sugar will be joined the another deoxyribo sugar. pentose sugar से दूसरा फिर से deoxyribo sugar जुड़ता है, ये फास्फेट ग्रुप से, और अगला फिर से थायमिन, थायमिन से फिर deoxyribo sugar, pentose ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप, और फिर फास्फेट ग्रुप से डीऑक्सीराइबो सुगर। नेक्स्ट साइटोसिन, साइटोसिन से फिर डीऑक्सीराइबो सुगर जुड़ेंगे, डीऑक्सीराइबो सुगर से फिर फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और ये इस तरीके से एक दूसरे से न्यूक्लियोटाइड लिंक होते चले जाते हैं। डीऑक्सीराइबो सुगर के तीसरे पांचवें, तीसरे पांचवें, तीसरे कार्बन से फास्फेट ग्रुप, अगली बार पांचवें से, फिर तीसरे से पांचवें से, तीसरे से पांचवें से। यही कारण है कि डीएनए हमेशा 3' to 5' 5' to 3' चलता है। दिस इज द बिलोंगिंग टू द डीएनए 3' to 5'। ये दिस इज द मोनोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं? ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की संरचना है, स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का है। डबल स्ट्रैंड डीएनए में इसी के सामने, एडेनिन के सामने डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन, ये चीज हमेशा आप लर्न करें। एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन, ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन जुड़ता है। थायमिन से फिर डीऑक्सीराइबो शुगर एंड फास्फेट ग्रुप जुड़ेंगे। इस क्रम में 3' to 5', दिस साइड में 5' to 3'। एक साइड में डीऑक्सीराइबो शुगर अपवर्ड एंड सेकंड साइड में डाउनवर्ड की तरफ चलता है। ये स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे। ग्वानिन के सामने ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन, साइटोसिन, देन नेक्स्ट फास्फेट ग्रुप, और ये फास्फेट ग्रुप फिर डीऑक्सीराइबो शुगर से डबल बॉन्ड से एडेनिन, डीऑक्सीराइबो शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर से फास्फेट ग्रुप एंड नेक्स्ट फास्फेट ग्रुप। साइटोसिन से फिर ग्वानिन, डीऑक्सीराइबो शुगर, फास्फेट ग्रुप and then phosphate group. This structure is the structure of nucleotides and also DNA. टोटल जो वेट होती है यहां से यहां तक, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये टोटल 20 एंगस्ट्रॉम की लेंथ लेती है। 20 एंगस्ट्रॉम इंक्लूड डिवाइड करेंगे आप इसको तो ये यहां से यहां तक 4.5 एंगस्ट्रॉम, ओनली न्यूक्लियोटाइड 4.5 एंगस्ट्रॉम दिस साइड, 4.5 एंगस्ट्रॉम दिस साइड। टोटल यहां से यहां तक 20 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होती है। अब 20 एंगस्ट्रॉम में यहां से यहां तक 4.5 एंगस्ट्रॉम, यहां से यहां तक 4.5 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 11 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो डिवाइडेशन है ये डिपेंड है वाटसन एंड क्रिक मॉडल पे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। अब आते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर 1950 में
वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया था। आइए देखते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए given by Watson and Crick 1950, given by Watson and Crick 1950. Double helix structure is the model of DNA, is the B type of DNA. On the basis of न्यूक्लियोटाइड इन वन हेलिक्स डीएनए ऑफ 5 टाइप्स, आगे हम उसके बारे में भी करेंगे। अभी यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का। This is the double helix structure of DNA. एडेनिन थाइमिन। दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा, हमने आपको पीछे भी बता दिया। एडेनिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है थाइमिन से, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है साइटोसिन से। ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन। क्रम भी फिक्स नहीं होते हैं। दिस सीरीज इज नॉट फिक्स। एडेनिन थाइमिन के बाद ग्वानिन साइटोसिन आएगा, ये भी फिक्स नहीं है। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन ये क्रम सीरियल फिक्स नहीं है, और ये टोटल वन हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स तक की जो डिस्टेंस होती है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। दिस इज 34 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इस हेलिक्स में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जब आप 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। यानी एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और टोटल जो डीएनए की विड्थ होती है वो हमने पीछे आपको बता दिया 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसको जब आप और कॉइल करते जाएंगे तो इनकी न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। एक कॉइल में, एक हेलिक्स में इसको आप ऐसे और कॉइल करेंगे तो एक हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वन हेलिक्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए। 5 टाइप के डीएनए हैं एक हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड के नंबर के अकॉर्डिंग। कितने टाइप के डीएनए हैं? 5 टाइप के। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। इन सब में न्यूक्लियोटाइड्स के जो नंबर होते हैं, ए डीएनए में 11
न्यूक्लियोटाइड्स। ये बात हो रही है 1 हेलिक्स में। 1 हेलिक्स में बी में 10 डीएनए, 10 न्यूक्लियोटाइड। सॉरी, वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए के डबल हेलिक्स का, वो भी डीएनए का ही दिया था। सी में आएगा आपका 9 न्यूक्लियोटाइड्स, डी में 8 और जेड में 12 न्यूक्लियोटाइड्स, जेड में 8 न्यूक्लियोटाइड्स। इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसीडर करेंगे, स्टडी करेंगे 4 वेव के रूल एंड कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए यानी न्यूक्लियोसोम मॉडल। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। और इसमें जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया है, कमेंट के माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं, उसको फिर से उसमें एक नया वीडियो जाएगा।